Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. So today in this session we are going to discuss the important historical event that is related to our post-independence history also and also to our foreign policy. Yes, and that is related to India-Pakistan War of 1965. Did you know that 1965 India-Pakistan war could have permanently ended the infiltration problem in Jammu and Kashmir? Yet, a strategic decision at the negotiating table changed the course of the history. So, welcome to our channel, that is Legacy Eyes Academy, where today we are going to unravel the fascinating story of Operation Gibraltar and Operation Gibraltar, which was the bold capture of Haji Pir by the Indian forces and the high stakes diplomacy of the Tashkent Agreement in 1966. So, from secret infiltration to the bravery of unsung heroes, today in this video, we are going to understand how a war that lasted just 17 days reshaped the borders and geopolitics of the Indian subcontinent. So stay tuned as we are going to uncover the untold stories and their lasting impact on India's national security. Now, the first thing that comes in our mind that why was the 1965 India-Pakistan war was fought? क्यों किया गया था ये वॉर 1965 का ये जो वॉर है तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जहां पे रिसेंटली अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह he said that after 1965 war with Pakistan had the Indian government converted the strategic advances gained by our soldiers into strategic advantages. और ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा अभी हम बात समझेंगे इस चीज को कि जो आज प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन इन सब चीजों का सलूशन मिल जाता इस वॉर में तो अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सो ही वाज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन अखनूर एट अ फंक्शन जहां पर आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे था ऑन 14th जनवरी जहां पर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा दैट इंडियन फोर्सेस हैड सक्सीडेड इन अनफर्लिंग द ट्राई कलर एट हाजी पीर इन 1965 है ना 1965 में हाजी पीर पास में इंडियन फोर्सेस ने अपना झंडा लगा दिया था एंड अगर हमने हाजी पीर रिटर्न नहीं किया होता तो आज आज इंडिया में इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती हाजी पीर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्लियर नाउ व्हाई वाज 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर वाज फॉट एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वॉर व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाजी पीर सो why Haji Pir is important with respect to infiltration. So what is the key context here in the news? Location Jammu and Kashmir, LOC region जिसकी वजह से वॉर हुआ था रीजन क्या था वॉर का पाकिस्तान क्या करना चाहता था पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया था एंड द एम ऑफ दिस ऑपरेशन वाज टू इंसाइट द पीपल ऑफ कश्मीर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट Now, what was the duration? Duration 17 days है इस war की and this war was ended on 20th September 1965. Clear? And then after that ceasefire agreement was signed and the most important international agreement was Tashkent Declaration. Clear? तो आज हम बात करने वाले हैं इस war के बारे में जी हाँ So Pakistan tried to steer the rebellion in Kashmir using the military operation called as Operation Gibraltar. And Pakistan sent its soldiers disguised as locals through areas like Haji Pir Pass, hoping Kashmiris would revolt against India. And this plan was failed because local Kashmiris they supported India and informed the Indian authorities about the infiltrators. तो कश्मीरीज ने इन्फॉर्म कर दिया था इंडियन अथॉरिटीज को तो प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम द इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ इफ यू सी द लोकेशन अगर आप लोकेशन देखेंगे एज यू कैन सी हियर दिस एलओसी रीजन दिस इज एलओसी रीजन
Now if you see this, India has 740 kilometer long line of LOC. So India has 740 kilometer long line of LOC with Pakistan, which passes through the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, and along 540 kilometer LOC in Jammu Kashmir, Indian Army ने क्या किया हुआ? Indian Army has erected barbed wire fences so that army can check the infiltration of militants and smuggling of armed ammunition as well as narcotics. क्लियर? तो फेंसिंग कराई गई हुई है. अब इसी के साथ ही साथ जब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो इन्फिल्ट्रेशन होता क्यों है? सो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, जहां पर 24/7 heightened vigil, इंडियन ट्रूप्स आर देयर, है ना, बट स्टिल at a times militants they find a way to infiltrate and smuggle in weapons and drugs into Jammu and Kashmir. ये कैसे होता है? This is done due to नालाज जो होते हैं and dense forest के थ्रू, है ना. तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इमेज नालाज, so this is due to नालाज and dense forest on the treacherous mountain track. Clear? तो ये जो नेचुरल गैप्स है ना LOC पर, इनकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन होता है. बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने यह भी कहा हुआ है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, दिस इन्फिल्ट्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय हाजी पीर पास. ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन हाजी पीर पास से होता है. दैट कम नाउ हाजी पीर पास कम्स अंडर द पीओके रीजन. हाजी पीर पास कहां पर आता है? पीओके रीजन में. दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ हाजी पीर पास, विच इज अ माउंटेन पास, जिसकी हाइट है, कितने हाइट पे बना हुआ है? 8661 फीट ऑन द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ पीर पंजल रेंज, एंड दिस प्रोवाइड्स द नेबरिंग कंट्री अ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज. इसकी वजह से हमारी नेबरिंग कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलती है, और इसी के थ्रू वो इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजते हैं. एज यू कैन सी हियर, है ना. Now, as you can see here, this is the map, and this map is very important. Clear? तो आप देख सकते हैं, this is Haji Pir Pass. This is the location of Haji Pir Pass, and this is in which region? POK region. Getting my point? और ये है LOC line. Earlier it was called as CFL, ceasefire line. Clear? तो इसी के थ्रू पाकिस्तान क्या करता है? इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता है. As you can see here, Haji Pir Pass, and this side Pir Panjal पास. सो दिस पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है इसका. क्लियर? इसीलिए पाकिस्तान हमेशा इसका फायदा उठाता है. नाउ दैट इज व्हाई इन 1965 पाकिस्तान स्टार्टेड द ऑपरेशन कॉल्ड एज गिब्राल्टर. अब पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था 1965 में? कॉल्ड एज ऑपरेशन गिब्राल्टर. नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन वाज that Pakistan will use Haji Pir Pass for infiltration, है ना. इन्फिल्ट्रेशन के लिए हाजी पीर पास का यूज करेगा, एंड पाकिस्तान will send its people, armed forces people, so that they can incite rebellion among Kashmir Muslim majority population areas, so that they can destroy Indian logistic like highways, है ना. तो इंडियन लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ये पाकिस्तान का एम था. तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन गिब्राल्टर. इन अगस्त 1965 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्फिल्ट्रेटेड इनटू कश्मीर डिस्गाइज्ड एज लोकल बनकर आए थे कश्मीर में, है ना, हाजी पीर पास के थ्रू. इनका प्लान ये था, सो दैट दे कैन इंसाइट द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट. दे वांटेड टू क्रिएट द अनरेस्ट इन कश्मीर. सो पाकिस्तान बिलीव दैट अ रिबेलियन बाय द लोकल पॉपुलेशन वुड सर्व इट्स कश्मीर केस एट इंटरनेशनल लेवल. तब उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे क्या कह सकता है कि कश्मीरीज को इंडियन रूल नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान का केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. बट पाकिस्तान मिलिट्री की जो, याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई. क्यों फेल हो गई? बिकॉज लोकल कश्मीरीज डिड नॉट रिवोल्ट, इंस्टेड दे इन्फॉर्म्ड आर्मी एंड लोकल अथॉरिटी, स्टेट पुलिस को बता दिया था इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में. तो यहीं पर पाकिस्तान का जो एम था वो फुलफिल नहीं हो पाया, और उसी टाइम पर पाकिस्तान ने अपने न्यूज़पेपर डॉन में भी ये छाप दिया था, पैट्रियट्स कट श्रीनगर जम्मू रोड.
और ये वही पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स थे। क्लियर? नाउ तो अब यहां पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट कैसे किया पाकिस्तान ने प्लान को, पाकिस्तान सेंट इट्स सोल्जर्स डिस्गाइज्ड एज लोकल इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर। तो आउटकम क्या निकला, दे वर फेल्ड बिकॉज लोकल कश्मीरीज इन्फॉर्म टू इंडियन अथॉरिटीज एंड इंडियन ट्रूप्स न्यूट्रलाइज्ड द इन्फिल्ट्रेटर्स। And do you know that how much infiltrators have been sent? Around 30,000 infiltrators were sent by the Pakistan. Clear? So local contributors बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है एक इंसान थे मोहम्मद दीन नाम के, जिन्होंने इंडियन अथॉरिटीज को बताया था एंड उन्हीं की हेल्प से इन्फिल्ट्रेटर्स को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद दीन साहब को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। एंड मोहम्मद दीन was killed in the militancy movement of Kashmir in 1990. After that, another important personality, Ghulam Deen, जिनको अशोक चक्र दिया गया, and he also helped Indian forces. तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है विद रेस्पेक्ट टू दिस वॉर। तो as आप देख सकते हैं मोहम्मद दीन एंड गुलाम दीन। नाउ इंडियन मिलिट्री का रेस्पॉन्स क्या रहा, अब इन सभी चीजों पर इंडियन मिलिट्री का रिस्पांस क्या रहा जब पाकिस्तान ने गिब्राल्टर ऑपरेशन किया। तो अभी मैंने आपको बताया दैट पाकिस्तानी सोल्जर्स दे स्नीक्ड इनटू कश्मीर थ्रू द हाजी पीर पास एंड दे एम टू ब्लेंड विद लोकल्स एंड डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीकन इंडियन फोर्सेस। So locals in Kashmir did not support Pakistan and also they helped Indian forces instead. So heroic contributors Muhammad Deen and Ghulam Deen was there. Now what was the Indian response for this? Indian troops ने क्या किया? They have crossed LOC on 15th August. कितने शुभ दिन पर इन हमारी forces ने क्रॉस किया LOC को? 15 August 1965. Initial success. So Indian troops crossed this LOC region on August 15, 1965 and they captured the Haji Pir Pass and nearby areas by 28 August, which reduced infiltration routes and making a movement in border towns easier. जिससे इन्फिल्ट्रेशन को काफी कमी हो गई एंड बॉर्डर टाउन्स में मूवमेंट काफी इजियर हो गया था जब हमारे फोर्सेस ने हाजी पीर पास को कैप्चर कर लिया था बाय 28th of August. So Indian forces they captured strategic points in Kargil sector. They secured Haji Pass and surrounding areas. Approximately 8 kilometers POK में Indian army पहुंच चुकी थी और कैप्चर कर लिया था. Now what is the significance of Haji Pir capture? His significance ये है that we have neutralized logistical setups for infiltration and जो डिस्टेंस था पूंछ और उरी के बीच में that was which was 282 kilometers and it was reduced to 56 kilometer. इंडिया को ये छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी. नाउ व्हाट वाज द पाकिस्तानी काउंटर ऑफेंसिव? अब पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया इन चीजों पर? पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन शुरू किया. सो पाकिस्तान काउंटर अटैक विद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम on 1st of September 1965 where Pakistan has targeted Akhnur region, that is Jammu का रीजन है अखनूर. Now अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान अटैक्ड अखनूर on September 1, 1965 एंड इंडियन आर्मी ने इस चीज को रिटेलिएट किया. तब इंडियन आर्मी ने नया फ्रंट खोला वॉर के लिए पंजाब से, दैट इज लाहौर एंड सियालकोट. और इंडियन आर्मी कहां तक पहुंच गई थी? पंजाब, सियालकोट, लाहौर में पहुंच गई थी. क्लियर? ये याद रखिएगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. सो पाकिस्तानी को काउंटर अटैक जो पाकिस्तान ने शुरू किया था वो था उनका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जहां पर उन्होंने अखनूर रीजन जो जम्मू का था उसको कैप्चर कर लिया था. अखनूर रीजन विच वुड हैव ब्लॉक्ड इंडियन सप्लाईज टू इट्स ट्रूप, है ना. अखनूर क्यों इंपॉर्टेंट था? इससे इंडियन आर्मी की सप्लाईज को रोका जा सकता था, है ना, साउथ पीर पंजल. एंड फ्रॉम अखनूर द पाकिस्तान ट्रूप्स प्लान टू मार्च टुवर्ड्स जम्मू. अखनूर से पाकिस्तान की आर्मी जम्मू की तरफ जाना चाहते थे, जिसका एम था दे शुड कट ऑफ द नेशनल हाईवे टू कश्मीर. एंड फाइनली इन द इनिशियल एडवांसेस पाकिस्तान आर्मी दे कैप्चर्ड चंब रीजन, जिसको चुंब रीजन भी बोलते हैं. एंड यहां पर हम यूएस को थैंक यू करना चाहेंगे. ये सारी चीजें पाकिस्तान यूएस की एड की वजह से कर रहा था. पाकिस्तान की मिलिट्री के पास सारे वेपन्स जो थे वो यूएस के थे
है ना, इन्फेंट्री पावर यूएस की थी. सो हाउएवर दे कंटिन्यूड देयर अटैक ऑन अखनूर. तब इंडियन आर्मी को लगा कि अब हमें अटैक करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इंडियन आर्मी टुक द वॉर इन राइट इनसाइड द पाकिस्तान एंड दे एंटर्ड टिल लाहौर एंड इट ओपनड अ न्यू फ्रंट इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस एंड मार्च अप टू सियालकोट लाहौर, है ना. तो पाक इंडिया की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी आर्मी को डाइवर्ट करना पड़ा और लाहौर की तरफ भेजना पड़ा. तो ये सबसे बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के लिए. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बेसिकली इंडिया ने लॉन्च किया था ऑफेंसिव अटैक इन पंजाब, पाकिस्तान and advancing close to Lahore and Sialkot. So what are the results of 1965 war? So finally a ceasefire was signed on 20 September 1965 and then an international conference or you can say agreement, है ना, USSR ने इसमें मीडिएट किया और ताशकंद अग्रीमेंट होता है 10th of January 1965. तो what are the geopolitical outcomes of दिस? तो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल आउटकम जो था वो इंडिया के लिए ये था टेरिटोरियल गेन. क्यों? इंडिया हैज कैप्चर्ड 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, सियालकोट, लाहौर, कश्मीर सेक्टर्स इंक्लूडिंग हाजीपीर पास आल्सो, है ना. पाकिस्तान दूसरी तरफ कैप्चर्ड ओनली 550 स्क्वायर किलोमीटर, सिंध डेजर्ट, चंब इन अखनूर, है ना. तो जब पाकिस्तान का हमारे पास लार्जेस्ट मेन एरिया कंट्रोल में था तो हम पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे से बार्गेन कर सकते थे. क्लियर? इसीलिए नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन वियतनाम वॉर. दैट इज व्हाई यूएसएसआर wanted to become a leader in South Asia. So USSR mediated in this war. USSR ने finally mediate किया and on 10th January 1966 this Tashkent Declaration took place. Now in this Tashkent Declaration, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो वॉर चला इंडियन पाकिस्तान का वॉर 1965 में, दिस वाज 17-day war hostilities between the two countries and this was ended after the ceasefire which was happened on 20th September 1965. Finally this was followed by Tashkent Agreement on 10th of January 1966 where both the sides agreed to return captured territories to the pre-war position. As a result, India returned Hajipir Pass and other captured areas. Yes, and Pakistan gave up Chamb region, है ना. But ये इंडिया के लिए बहुत ही याद रखिएगा लॉस का आप कह सकते हैं नेगोशिएशन था, क्योंकि अगर इंडिया अपने पास हाजीपीर पास रखता तो इनफिल्ट्रेशन आज बहुत कम होता. सो पाकिस्तान आल्सो गेव चंब रीजन बट पाकिस्तान रिकैप्चर्ड चंब रीजन इन 1971 वॉर. पाकिस्तान ने फिर से चंब रीजन को क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया था 1971 वॉर में. क्लियर? सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीज फायर अग्रीमेंट, जहां पर दोनों ही पार्टीज ने साइन किया 10 जनवरी 1966. इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और जहां पर उनकी डेथ भी हो गई थी. What are the key points? Both countries returned to pre-August position. That means जितने भी pre-war territories थे दोनों ने अग्री किया. इंडिया रिटर्न हाजीपीर एंड अदर कैप्चर्ड एरियाज टू पाकिस्तान. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? पाकिस्तान रीगेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अलोंग एलओसी बिकॉज पाकिस्तान को हाजीपीर पास मिल चुका एंड हाजीपीर वंस अगेन फैसिलिटेटेड इनफिल्ट्रेशन इनटू जम्मू एंड कश्मीर. इस पास का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर इनफिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ पाकिस्तान वेकेटेड चंब बट इन 1971 वॉर India lost this territory again and now ये जो चंब region है it is now a part of POK region which is a loss for India. तो सबसे important चीज हाजीपीर पास जो है उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है and it is located in like western पीर पंजल range in POK. हाइट इसकी हाइट कितनी है 8661 फीट. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? It is used for the key infiltration route into Jammu and Kashmir and this also provide logistical advantage to Pakistan and dense forest as well as nalas in the region. These two important things aid in smuggling and militant movement. और ये काफी इंपॉर्टेंट एक बुक है बैटल ऑफ हाजीपीर कुलप्रीत यादव जी की, जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है, वो काफी अच्छी बुक है. What are the war implications? Now for Pakistan
failed to instigate rebellion in Kashmir because local Kashmiris informed Indian authorities and divert Pakistan को 1965 war में divert करना पड़ा troops to defend Lahore, and this was the defeat for Pakistan, and that defeat was strategic and political defeat. And for India, short-term tactical victory was there, है ना, with the capture of Haji Pir. But India ने opportunity miss कर दी to retain strategic advances, है ना, पोस्ट वॉर में, बिकॉज इंडिया को हाजी पीर वापस देना पड़ गया. सो अगर हम आउटकम देखें, है ना, सो द वॉर इज एंडेड इन अ स्ट्रेटेजिक डिफीट फॉर पाकिस्तान as its plan to incite the rebellion in Kashmir was failed. So critics like Defense Minister Rajnath Singh ji ne recently he said that India should not have returned Haji Pir Pass as it remained a key infiltration route for militant. So overall, if we see, this 1965 war was not just a military clash, it was a game of strategy, courage and also political maneuvers. So India's capture of Haji Pir Pass was a remarkable feat, but its return during the Tashkent Agreement left questions that still linger today. Could the infiltration problem in Jammu and Kashmir have been solved then? Or as we reflect on the sacrifices of our soldiers and the local heroes who shaped this historic moment, one thing is clear: history continues to teach us invaluable lessons about strategy, about resilience, and the cost of diplomacy. So if you found this story is important and insightful, so don't forget to like, share and subscribe to our channel, that is Legacy IAS Academy, for more deep dive into India's history and geopolitics. Let us know your thoughts in the comment section, that should Haji Pir have been retained or not. Thank you so much.